عید آئی، عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV پر یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں، اور جتنی سماعت ہے اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں، ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب تمام عالم اسلام کو عید کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بہترین پروگرام آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے، اور ان بہترین پروگرامز میں یقیناً بہترین جو مہمان شخصیات جن سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ ایک بہت اہم اور ایسا ذریعہ ہے جو ARYQ TV آپ کی ملاقات کروانے کا، کہ جہاں پر ان کو ہم سنتے ہیں، مہمان شخصیات کو ان کے کلام سنتے ہیں، اور جو اسکالرس یہاں پہ آتی ہیں ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں، وہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے، ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، اور بالخصوص اس جو خاص طور پر جو خصوصی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں عید کے حوالے سے، یہ بہت ہی پرمسرت ہو جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوشیوں کا باعث بنتی ہیں، اور شکر کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اس طرح سے بیٹھنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، کہ گزشتہ سال بھی ہم اسی طرح سے مل بیٹھ کر عید کی خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اسی طرح سے خوشیاں بانٹتے ہوئے، ہم سب کو ایک ساتھ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے، اسی طرح سے ایک ساتھ ایک دکھ درد سمیٹتے ہوئے ہمیں ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک پروردگار عالم کا یہ بھی شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں 30 روزے عطا کیے، اور جو تمام رمضان مبارک کے جو روزے تھے وہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے عید کے دن آج ہم یہاں پر موجود ہیں، تو اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں بھی عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور شکر کر رہے ہوں گے اپنے پاک پروردگار عالم کا۔ جناب چلتے ہیں مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب، اور ایسی شخصیات یہاں موجود ہوتی ہیں، خاص طور پر میں کہنا چاہوں گی ARYQ TV کے پلیٹ فارم پہ، کہ جو اتنے تواتر کے ساتھ اسکرین پر آتی ہیں اور آپ کے گھروں کا حصہ ہیں، کہ جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ہیں یا یہ کوئی غیر ہیں، آپ کو اپنی ایک فیملی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنی فیملی کا حصہ محسوس ہوتے ہیں، اور بالخصوص جن شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہوں ان کے لیے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت باروب شخصیت ہیں، بہت با کمال شخصیت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی محبتیں انہوں نے بانٹی ہیں، اتنی جو ہم نے جب سے ان کو دیکھا ہے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت مضبوط شخصیت کی مالک ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو بہت مضبوط شخصیت کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ ثنا خوانی کی دنیا کا تابندہ ستارہ تابندہ لاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم تابندہ آپا، اور بہت بہت تہہ دل سے عید مبارک آپ کو۔ بہت مبارک آپ کو بھی، تمام ناظرین کو۔ مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں اللہ کا آپ؟ شکر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری آواز ہے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ بہت پیارے دل کی بھی مالک ہے، دل کی بھی بہت اچھی ہے، بہت خوش اخلاق بھی ہیں، بہت پیاری شخصیت ہے۔ شمسہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ شمسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں شمسہ؟ اللہ کا کرم بہت۔ ان کے ساتھ جو ثنا خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت چھوٹی سی ہیں، ننھی سی ہیں، ثنا خواں ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی آواز میں بہت درد ہے، ثنا خوانی کرتی ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کی تعریف اور توصیف بیان کرتی ہیں۔ مہنور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مہنور، کیسی ہیں آپ؟ مہنور پچھلی بار بھی ہم آپ کے ساتھ عید منا رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اسی خوشیوں میں آپ بھی شامل ہیں، دیگر مہمان شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے سیدھے ہاتھ پر جو ثنا خواں تشریف فرما ہے، یہ ثنا خواں ہیں خود بھی، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں۔ آپ نے ماہ رمضان مبارک میں ان کا ایک سیگمنٹ بھی دیکھا ہوگا، افطاری کے حوالے سے بچوں کو بہت خوبصورت انداز سے افطاری بھی کرا رہی تھیں، ان تعارف بھی کروا رہی تھیں، ان سے گفتگو بھی کر رہی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جویریہ کمال۔ السلام علیکم جویریہ، کیسی ہے جویریہ؟ ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سائقہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر سائقہ کے ساتھ تشریف فرما ہے طیبہ عبدالرزاق۔ بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ آپ کا طیبہ، ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اور آپ سب کو ایک ساتھ ہم کہیں گے عید مبارک، بہت بہت آپ سب کو ARYQ TV کی جانب سے، میری جانب سے بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اور تابندہ آپا، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ایک بہت ہی روایتی سا سوال ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک سے جب میں ملتی ہوں یا آپ سے جیسے ملاقات ہوئی تو ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر میں آپ عید کو، اور خاص طور پر پہلے دن دوسرے دن، کیا خاصیت ہوتی ہے، کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کرتی ہیں؟
پہلے بھی جب چھوٹی تھی جب تو ظاہر ہے کہ وہی ہوتا ہے جو سارے بچوں کا ہوتا ہے، عید کے کپڑے، میچنگ، یہ وہ ساری چیزیں. پھر ظاہر ہے کہ جب پریکٹیکل لائف میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. صحیح. مگر کوئی گھریلو ذمہ داریاں چونکہ مجھ پہ زیادہ نہیں رہی تو وہ پریشانیاں، یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے کہ میں گھریلو ذمہ داریوں سے تھوڑا دور لیکن ہوں. آپ کے اوپر آپ ہاں، جو لیکن ذمہ یہ داریاں ہے تھیں انہیں بہت خوب کہ نبھایا آپ نے ماشاءاللہ. چونکہ رمضان بہت مصروف گزرتا ہے ہر حوالے سے، میرے پروفیشنل کے حوالے سے یا ذاتی حوالے سے، تو یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سو جائیں یا آرام کر لیں، یہ زیادہ ہوتا ہے. پھر جب میرے ہسبینڈ زندہ تھے تو تب تک ٹھیک ہے، پھر وہ ایک روانی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے. ان کے جانے کے بعد ذرا ایزی گوئنگ ہو گئی، کوئی اور ایک ذمہ داری نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا لونلینس فیل ہوتی ہے. بٹ میری فیملی پوری ساتھ ہے میرے، تو اس لیے بس. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقریبات، یہ موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں اس کو سو کر نہیں پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ یہ نصیب سے ہی ملتے ہیں موقع. ہاں یہ بات تو ہے، اور اس طرح سے محبتوں کا فروغ بھی ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، کسی کی بات سن لیتے ہیں، کسی سے اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہیں. شمسا بڑی توجہ سے سن رہی، کہہ رہی ہے ہاں زینب صحیح کہہ رہی ہے. شمسا آپ بتائیے گا، آپ کیا کرتی ہیں؟ امی کے گھر جاتی ہوں گی سب سے پہلے، خاص طور پر لڑکیوں کا زیادہ تر شادی کے بعد یہ ہوتا ہے بھائی عید ملنے امی کے گھر جانا ہے. عید کے پہلے دن میں والدہ کے گھر تو خیر جاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میری جو ترجیح ہوتی ہے وہ سسرال ہوتی ہے نا. ایکچولی سب سیپریٹ ہیں، سب جٹھانیاں اور جیٹ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو سب سے پہلے ہم جب ہماری ساس حیات تھی تو سب سے پہلے ان سے ملنے جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اب آج اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر بھی ہم انہی جٹھانی کے گھر جائیں گے اور عید مبارک، سوری ہم گئے اور وہاں پر عید مبارک کہہ کر آئے سب کو، اور پھر ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں. آپ دوسرے دن جا رہے، کوئی طے شدہ پروگرام تو نہیں ہوتا، جب بھی آپ جائیں عید کے ملنے کے لیے تو جا سکتے ہیں. فرسٹ ڈے شمسا یہ بتائیے گا، سب سے پہلے جو ننھی سی پری بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ، ان کا نام کیا ہے؟ عائزہ. عائشہ. عائزہ. عائزہ. عائزہ عید مبارک کہیں آپ کو. ہاں عائزہ ادھر تو دیکھیے، ارے لفٹ ہی نہیں ہے کوئی عائزہ کی طرف سے، تو مطلب نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. عائزہ عید پہ کیا کھایا آپ نے فراک کے علاوہ؟ فراک. چلے ابھی عائزہ کا موڈ نہیں ہے، مہنور سے پوچھ لیتے ہیں. مہنور، ابھی تو آپ جیسے ظاہر چھوٹی ہیں تو گھر میں کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا ہوگا، ہے نا؟ جی. تو خوش ہیں آپ اس بات پہ؟ جی. اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں چھوٹی ہی رہوں؟ نہیں پھر دعا کرتی ہوں جلدی سے بڑی ہو جاؤں. اتنا اداس ہونے کیا بات ہے، خوشی سے بتا دو. جی جی تھوڑا سا مما کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتی ہوں. جی تھوڑا سا بہت تھوڑا. اچھا یہ تھوڑا بھی اتنا تھوڑا آیا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی، بالکل تھوڑا سا آیا ہے. صحیح. تو مما خوش ہوتی ہیں آپ کے کام کرنے سے؟ یا وہ جو زیادہ تر آپ ان بچیوں میں سے جیسے مما نے آواز دی تو اس کے بعد کہتی آواز ہی نہیں آئی؟ نہیں. شمسا تھوڑا سا آپ پیچھے ہوئے گا، مجھے مہنور کا پیارا سا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اچھا ہاں. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، پڑھاکو ہیں؟ جی. اچھا. عید پہ عیدی دیتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جو بچے ایسے آ جاتے ہیں نا جو کہتے ہیں بس ہمیں اپنے 10 روپے میں سے بھی ہمیں دے دیں، کچھ ہوتے ہیں. دے دیتی ہو؟ جی. اے کتنی معصوم سی بچی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے بچے؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی خوشیاں شیئر کرنی چاہیے سب سے. ویری گڈ. تو جتنا زیادہ ہم شیئر کریں گے اتنا زیادہ ہماری خوشیاں بڑھیں گی، تو اس وجہ سے اپنی جو ہے خوشیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جویریہ آپ بتائیں، آپ کا یہ جو رمضان کا خاص طور پہ میں پوچھوں گی کہ ایکسپیرینس تھا بچوں کے ساتھ جو افطاری کا خاص طور پہ، یہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت زیادہ اچھا رہا، بہت زیادہ ماشاء اللہ. ڈفرینٹ کھانے دیکھے ہم نے جو سب کے گھروں میں نہیں کھائے بھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے سب کے گھروں میں الگ الگ کچھ بنتا ہے تو کچھ بہت اچھا بھی لگا، اور ڈفرینٹ لوگوں سے ملے، بہت اچھا لگا، بہت اچھا ایکسپیرینس. اچھا بچوں میں بیٹھ کے نا بچہ بن جاتا ہے، بچہ بننا پڑتا ہے، سیکھتا ہے بچوں سے بھی بہت. بالکل ان سے بہت فرینڈلی بات کرنی پڑتی ہے. بہت دوستی ہو گئی کچھ بچوں سے؟ بہت زیادہ. پہلے دوستی کر کے ہی پھر ان کے ساتھ بیٹھے تو بہت زیادہ مزہ آتا تھا. تو میسج آتے ہیں بچوں کے؟
जी आते आते हैं? हैं। हाँ, आप बहुत प्यारी लग रही थी, ये ज्यादा मैसेज यही आते होंगे, है ना? सही। साइबा से पूछते हैं, साइका आप कैसा महसूस करती हैं जब आपके घर मेहमान आ जाते हैं? तो आप जैसे पकाने वकाने की शौकीन है, मेहमानदारी की शौकीन है, या फिर ये होता है हाय अब क्या होगा, मैं तो खुद जा रही थी, कभी ऐसा होगा? AMIQ TV की टीम को और तमाम नाजरीन को जो लोग देख रहे हैं सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा, बहुत खूबसूरत सा ब्राइट सा जो है वो सेट बहुत खूबसूरत है, देख के जो है ना वो वाकई बहुत अच्छा सा फील हो रहा है ना। सराउंडिंग्स आपकी बहुत ब्राइट मैटर इसलिए करती हो गया हैं। कि आप सब ब्राइट जो चेहरे हाँ, लेकिन ये आपके मतलब यहाँ ये पर और भी चमक रहे ज़्यादा हैं अच्छा लग माशाल्लाह। रहा है, मतलब सराउंडिंग्स हाँ। अच्छी हो ना तो बहुत अच्छा फील करते हैं। साइका बेसिकली तारीफ करवाना चाह रही थी कि आपका Set- ड्रेस बहुत अच्छा ब्राइट ड्रेस कलर में अच्छा इसलिए है, प्यारा मैंने लग तो रहा खैर है। सेट के हवाले से बात की। सही सही। अच्छा, जहाँ तक रही बात मेहमानों की, तो मेहमानों के आने से डेफिनेटली शुरू से ही जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता था कोई भी घर में आए, तो बस मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उनके सामने ऐसा क्या प्रेजेंट करूं जिनसे मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, एक्साइटमेंट। और जहाँ तक रही बात कुकिंग के हवाले से, तो पढ़ते हुए तो जाहिर सी बात है टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हुआ करता था, तो उस टाइम पे तो मैनेज करना मुश्किल होता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होने लगा कि चलिए ठीक है अब कोई डिशेस बनाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो एबिलिटीज जो है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई। तो हाँ, डेफिनेटली कुकिंग का शौक है और जब टाइम मिलता है तो डेफिनेटली बनाती हूँ। तैयबा से पूछ लेते हैं। तैयबा, एक तो आपका नाम इतना प्यारा, बार बार लेने का दिल चाह रहा है, इतना अच्छा नाम है माशाल्लाह। तो आप का क्या रूटीन है ईद पे, कुछ इस हवाले से बताएं। ईद पर शुरुआत से ये रूटीन रही है कि ईद का चांद देखते वक्त और ईद का चांद देखने के बाद फ्रेंड्स से कॉल पर बात हो जाती है, उन्हें मुबारकबाद दी जाती है और फिर सुबह उठते ही बेस्ट फ्रेंड को मुबारकबाद देते हैं। और फिर उसके बाद जो डेली रूटीन, फादर नमाज पढ़कर आते हैं और फिर वो ईदी वगैरह लेना। हम अभी तक बच्चे हैं, हम अभी भी पेरेंट्स से ईदी लेते हैं और फिर उसके बाद खुद छोटों को ईदी देना। हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। ताबिंदा आपा, आपसे पूछूंगी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ईद की मुबारकबाद हम देते हैं, और अब तो ये ट्रेंड ही खत्म हो गया ना। पहले कितने प्यारे प्यारे ईद कार्ड होते थे, ईद कार्ड बनते थे, बाकायदा लिखे जाते थे, इस फलां टीचर को भी देना है, स्टूडेंट्स को देने हैं, अपनी फ्रेंड्स को देने हैं, कजन को। अब तो मैसेज किया, सबको फॉरवर्ड कर दिया। बात ये कि कहाना के है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आला। वो चीजें जो रिवायत में शामिल थी, कार्ड बनाना, कार्ड, वो पूरी एक इंडस्ट्री थी, तो वो अब खत्म हो गई। जाहिर है कि आपके पास गैजेट्स आ गए, मोबाइल फोन की सूरत में, टैब की सूरत में, तो हर चीज वन टच पे हो गई। सही। दिलों के फासले बढ़ गए, लेकिन अब वैसे वन टच पे हैं। तो अब कौन इतना वक्त निकाले, जाके कार्ड ढूंढे, लिखे, सोचे। सही। तो हालांकि तहरीर की जो अपनी अहमियत है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। ताबिंदा आपा, एक वक्फे पे जाना है, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। और ताबिंदा आपा के हवाले से ना एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है, और वो है ये अक्सर जिक्र करती है शन्नो, इनकी जो देवरानी है, उनके खानों का, शन्नो फूड के हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ मजेदार हलीम ने हमारी इस ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन किया है, उनके शुक्रगुजार हैं। मुगलिया फूड के शुक्रगुजार हैं जनाब। और शन्नो फूड के बारे में वक्फे के आने के बाद से हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। फिर खुशामदीद, और आप सबको मेरी जानिब से और मेरे पूरे पैनल की जानिब से। मजा नहीं आया भाई, बहुत फीकी ईद हो रही है, सेवैयां नहीं खाई, कुछ नहीं खाया। मेरी जानिब से और आप सबकी जानिब से ईद मुबारक। थोड़ी सी आवाज तो निकलनी चाहिए ना, पता चले भाई क्यों टीवी वालों ने कुछ खिलाया। बल्कि हम वक्फे पे जाने से कबल ताबिंदा आपा से बात कर रहे थे, और इतनी मोहब्बत मैंने देवरानी और जेठानी के रिश्ते में ना बहुत कम ही देखी है। ताबिंदा आपा, कुछ बताइएगा ना इस बारे में। देखो, देवरानी का पता नहीं, मैं जेठानी हो चुकी, मुझे पके पकाए खाने मिलते हैं तो मुझे तो मोहब्बत करनी चाहिए। सच्ची ये है कि मेरी देवरानी, मैं, हम दोनों साथ रहते हैं और अब भी साथ हैं। क्योंकि अक्सर मेरे भाई बहन कहते हैं कि भाई तुम अपने घर में आओ, ये बोले कि मैं उसी के साथ रहती हूँ। सही। बच्चों के साथ मेरा काफी ताल्लुक है, तो शन्नो ही घर का निजाम चलाती थी पहले भी। मैं चूंकि ज्यादा वर्किंग ज्यादा रही, तो ये होता है घर में मेरा कोई और तरीका है सपोर्ट करने का, उसका कोई और है। सही। तो कभी कभी कभार मैंने पकाया, बहुत ही कम, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी पहले मैं रोटियां वगैरह पका लेती थी, पराठे वगैरह, और वही देखती है, वही पकाती है। तो बहरहाल मैं शुक्रगुजार होती हूँ उसकी, क्योंकि चूल्हे की गर्मी से और दूसरे घरदारी से, मतलब कि भाई गेट पे कौन आ रहा है। लेकिन ताबिंदा आपा, मैंने हमेशा, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा और उसके बाद आपके तारुफ के दौरान भी, पर ये कोई बहुत काबिल फख्र बात नहीं है कि
मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे हाँ। कुछ मौके नहीं थे, मैं बाहर ज्यादा रही और फिर ज़ाहिर है घर में वो कर लेती मैं उसी है, बात पे लेकिन आ रही थी क्योंकि मैंने आपको शुरू से बहुत एक मजबूत खातून के तौर पर देखा माशाल्लाह। हाँ ये बज़ाहिर ज़ाहिर हाँ, हाँ। ये आपा ने बिल्कुल सही बात की क्योंकि जब भी वो अपने हस्बैंड का भी आप जिक्र करती है ना, आपा की आंखें नम हो जाती है। मैंने अक्सर देखा और महफिल आपको में भी होना हम जब पड़ता है। मिलते हैं ना तो यही कहती हैं, हाँ उठते हुए खास तौर पर मेरे हस्बैंड को दुआओं में याद रखना। तो आज इस ईद की खुशी में ना आपा आपने हाँ, हम बिल्कुल सब उदास अपने नहीं प्यारों होना को है। याद रखते हैं, उदास बिल्कुल नहीं। याद तो रखते हैं, जाने याद तो वालों को होते हैं। जाना है और जिंदगी को चलते रहना है। हाँ और बेशुमार लोग हैं जिनके प्यार उनके साथ नहीं है, हाँ। लेकिन ये अल्लाह की नेमत है ही, तो वी हैव टू सेलिब्रेट और ये with कानून their dust, हाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, कानून कुदरत है ना कि कानून लोग कुदरत। आना है, लोगों को जाना भी है, हम्म। जिंदगी से नए लोगों को शामिल भी होना है। हाँ। और इसी के शन्नो साथ फूड तो मैं कहती हूँ, निहारी वगैरह बहुत अच्छी बनाती है, तो मैं अक्सर उसको कहती हूँ चलो अपना बिजनेस शुरू करते हैं शन्नो फूड्स के नाम मैंने से। यही तो कहा है, एक दिन हाँ, आपसे भी मैंने ये कहा ये था। सोच रही हूँ कि जब नौकरी खत्म करूँ तो ऐसी कोई कारोबार शुरू कर। ये है। सही। और जब शन्नो फूड की बात आती है जनाब, तो ये जो मुगलिया के निम्को है ना, मैं ये भी दिखा दूं आप लोगों को, साथ साथ दिखा दूं, सिर्फ नहीं खिला दूंगी, ऐसी बात नहीं, मैं अच्छी मेजबान हूँ, खिला भी सकती हूँ। और ताकि ये पता चल जाए ना कि ये ओरिजिनल है, ये प्लास्टिक की नहीं है, रबड़ की नहीं है। आप सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा सा चख लें। मैं चख लेती हूँ क्योंकि हाँ। मैं बहुत रोजाना ही खा रही हूँ, इसलिए मैं अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है। ये ले भाई शमसा, ये मुगलिया वालों की निम्को हैं, आप भी ले लें आयशा। थैंक यू थैंक यू। जवेरिया, अब ये बाकी का काम आपका है, आप प्लेट को आगे पार्सल कर दें आप, तो जरूर इसको चख लीजिएगा आप लोग। और ये बहुत मजे की खुश जायका होती है और ईद की ये खुशियां होती हैं, जिस तरह से खास तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आम दिनों में नहीं खाते, लेकिन बहुत ईद के दिन वो भी हम कभी कभी चख ही लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना मीठा नहीं खाते। शीर खोरमा सबसे कौन ज्यादा अच्छा बनाता है? मेरी अम्मी। मेरी अम्मी। मैं इतनी खुशी से कहा मेरी तो अम्मी। देखना ही नहीं। हाँ मैं मेरी तरफ तो समझी देखना ही मैं नहीं। बनाती हूँ। नहीं वैसे तुम क्या मैं बनाती हो? कुकिंग करती हूँ, और अब वो अपने मुंह मियाँ मिठू वाली बात हो जाएगी। कोई बात जो भी बनाऊं, जो भी बनाऊं अच्छा यहाँ से चलते अम्मी भी आती है, उनसे भी पूछ जवेरी की लेंगे। तरफ चलते हैं, फिर हम टेस्ट करके बताते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, वो मोस्ट वाकई वेलकम। सब कुछ अच्छा बनाती हूँ मैं, डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा और लजानिया टाइप की चीज़ें मुझे ज़्यादा बनाने का शौक है। लेकिन शीर खोरमे की अगर बात है ना, तो जब तक अम्मी के हाथ का शीर खोरमा ना हो ना, बस कोई ईद ईद नहीं लगती। और बहुत जायका अच्छा आप क्या बनाती बनाती है? जायका और जायका मिलता जुलता है, तो आपके हाथ में जायका है कि नहीं? दो अलग चीजें हैं। अच्छा हाँ, लेकिन ये ट्राई करती हूँ और सही। स्वीट डिशेस अच्छी बनती हैं। अच्छा। और तैबा? मैं घर के खाने वगैरह सब बनाती हूँ, स्वीट डिशेस ज़्यादा नहीं बनाती। और मेरी छोटी बहन और मेरी भाभी कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वही दोनों ज़्यादा बनाते हैं, और दोनों के हाथ में जायका भी बहुत है, एक से बढ़कर एक खाने दोनों बनाती हैं। सही। जायका वैसे कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम जा रहे हैं और बिल्कुल हम रेडी है, कभी ऐसा बड़ी कैफियत अजीब सी हो जाती है, सब रेडी है और मेहमान आ गए और अब बिल्कुल हम तैयार हैं, ऐसे कपड़े पहने के उसके बाद किचन में भी जाने का दिल नहीं। सर जवेरिया हाँ हाँ करिए, ऐसा हो जाता है के साथ हुआ है। जवेरी की आप बीती में ऐसा हो चुका है। हो चुका नहीं है। ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल होता है। अच्छा। तो फिर ये होता है कि हम डेफिनेटली आने वाले को वेलकम करते हैं, उसको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, हाँ, मेरे उस साथ time पे ये ऐसा होता है कभी कि- भी नहीं हुआ। अच्छा लाइफ में चलो कभी तैबा नहीं के हुआ साथ में ऐसा। जवेरिया कुछ बता रही थी। मैं जवेरिया कह रही थी ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है, जैसे हम छोटे थे, बड़े होके थोड़ी समझ आती है। जब छोटे थे तो बुरा लगता था कि हम जा रहे हैं, प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन अम्मी पापा का ये होता था कि नहीं वो रहमत है। और जब मैं अम्मी को देखती थी तो अम्मी कम में निपटा दो, तो अम्मी का नहीं कि खाना भी बनाना है तो उनको अच्छे से करना है, तो ये है कि उसी से बरकत होती है, अब समझ आता है। सही सही। अच्छा बच्चों का ये होता है कि बस जल्दी जल्दी कोई मेहमान आ गया ना, अगर ऐसे मौकों पे, तो बच्चों का बहुत ज्यादा मूड खराब होता है। वो कहाँ चली गई बेटी? वो उन्हें नींद आ रही थी तो अच्छा वो सो गई, नींद आ रही थी, ठीक। तो वो क्या करती हो ज्यादातर? बच्चों को पहले तैयारी होती है, बच्चों की चूड़ियां हैं, पर्स है, ये सब है, या फिर पहले होता है कि मैं चलो पहले अपने कर लूं, फिर बाद बच्चों की चीजें बाद में लेती ये तो एक रहूंगी? नेचुरल सी बात है कि पेरेंट्स सबसे पहले बच्चों के बारे में ही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले उनकी पूरी हो जाए। हाँ। तो मेरी भी वही तरजीह होती है कि मैं पहले बच्चों की सही। शॉपिंग कंप्लीट कर लूं। बेटी की मैचिंग की ज्यादा फिक्र होती है कि ये मैचिंग का ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एंड तक कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि सारी चीजें बच्चों की पहले हो जाएं। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाके
میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ اپنے کپڑے لے رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چاند رات کو میرے ہسبینڈ اپنا سوٹ عید کے دن فرسٹ ڈے کا لے کر آ رہے ہوتے ہیں ریڈی میڈ پرچیز اچھا. کر کے کہ بس یہ اس کو پریس کر دینا, صبح پہننا ہے نماز میں. تابندہ آپا آپ بتائیں نا اپنے بچپن کی عید کے بارے میں, کیونکہ آپ مجھے اتنی مطلب لگتا ہے کہ جیسے شروع سے بہت ذمہ داری نہیں, ذمہ محسوس داری کرنے تو بالکل والی. نہیں, لیکن بچپن سے میں عید کو بہت انجوائے کرنے والوں میں سے تھی. ضد کرتی تھی بچپن میں آپ؟ نہیں, ضد میں نے نہیں کی. اچھا. شاید میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا نہیں کہ امی ابا سے ضد کرنی پڑی ہو, کیونکہ پیرنٹس جو تھے میرے, یہ ہم جتنی تینوں بہنیں, ہمارے بھائی, ایک بہن میری انجینئر ہے, ایک لائر ہے, یا میں, تو پیرنٹس نے ہمیں بغیر مانگے بغیر خواہش کیے ہماری ہر خواہش پوری ہوئی. یہ اللہ کی عنایت. پھر جو بننا چاہا, جو کرنا چاہا, اس کی اجازت بھی ملی. تو ابا ہمارے جو ہے, امی میری باہر نہیں نکلتی تھی, ابا ہمارے بہت بازار سے ہر چیز لے کر آنا, چپلیں, جوتے. اور میں دونوں بہنوں میں اس وقت بھی میں یہ میچنگ کا جو شوق تھا وہ مجھے ہمیشہ سے تھا. تو میں اپنی چیزوں میں زیادہ پرٹیکولر تھی دونوں بہنوں کے مقابلے. اور کھیل کود میں زیادہ, کھیل کود یوں کہ مار دھاڑ والے کھیل لڑکوں کے ساتھ, جو ہم, میرے ابا اسٹیٹ بینک میں تھے, ہم اسٹیٹ بینک کالونی میں رہتے تھے, تو زیادہ میری تو خواہش ہوتی تھی میں باہر کھیلنے چلی جاؤں. اور اتنی امی کہتی تھی صرف شام کو 5 بجے کے گئے, تو جہاں امی کی آنکھ بچی میں نیچے باہر نکل جاتی تھی تو مجھے ڈانٹ پڑی پڑتی تھی. اور دونوں بہنیں میری بہت صحیح تھی. مانور سے پوچھ لیتے ہیں, مانور کون سی کلاس میں ویسے ابھی آپ؟ 7th میں. ہاں جبھی تو ابھی کیا, ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, زندگی ایسی کھیل کود میں گزر رہی ہوگی, ہے نا, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی نہیں. کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ میڈیکل فیلڈ میں, ڈاکٹر. میڈیکل میں جانا ہے. اچھا. لیکن زمانے میں آج کل 7 سال کا بچی بھی کافی میچور ہو گئے. ہاں ان کو کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے, آگے حالات کیا ہیں, بڑا وقت سے پہلے بچے جو ہے نا بڑے ہو گئے. ہاں میڈیا نے بھی بہت اس میں کردار ادا کیا. لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آف ایئر, جب بریک میں بھی اس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ کیو ٹی وی کا خاص طور پر بڑا خاصا ہے یہ ایک تربیت کے حوالے سے, جو بہت اچھی تربیت کیو ٹی وی کر رہا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ یہاں پہ بچیاں آتی ہیں, اور ایک اچھا لگتا ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں اچھے بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, پھر یہاں پہ اچھا ماحول ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ایک تربیت گاہ ہے میرا خیال, میں سمجھتی ہوں کہ کردار سازی بھی ہو رہی ہے بچیوں کی, اور اس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ظاہر موجود ہوتی ہے. یہاں پر بچیاں ثناخوانی کرتی ہیں, اسکالرس جیسے جہاں پہ تشریف فرمائے بہترین گفتگو کر رہی ہوتی ہے. لیکن آج میں چاہوں گی کہ میں کچھ ہٹ کے پوچھوں ان سے, اپنے گھر کے حوالے سے باتیں پوچھوں. سائقہ آپ بتائیے گا کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خواتین میچنگ کو بہت زیادہ فوقیت دیتی ہیں, مجھے ابھی لگ رہا ہے یہ تو بالکل ایکسیڈنٹلی ہے نا. اچھا. کال آئی کہ بھائی عید کا پروگرام ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی فیملی ٹائم ہو اور آپ نہ ہو, تو پھر کال کی. تو پھر بس مطلب بچپن سے نہیں تھا کہ ہر چیز میں میچنگ ہو یا وہ؟ نہیں, بچپن سے یہ تھا کہ آپ ہی اور میری اماں اور اس کے علاوہ بھابیاں, وہ بس میں کہتی تھی بس لے کر آ جاؤ. مجھے مطلب کبھی بھی یہ ایشو نہیں ہوتا تھا, وہ لوگ ہمیشہ جو بھی لے کے آتے تو مجھے شروع سے بہت اچھا لگتا تھا. چوز ہی نہیں تھی میں کبھی بھی کہ نہیں ایسا ہی پرٹیکولر ون ہونا چاہیے, جو بھی لے کے آتے تھے میں بڑی خوشی ہر چیز میں نے کہا, لیکن وہ ہر چیز اتنی اچھا اچھی وہ ہوتی کون سا بچہ ہے آپ سب میں, وہ کون سا بچہ تھا جو جیسے ہوتا ہے کہ عید پہ جھولنے, جھولوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں بہت سے بچے. یہ مجھے لگ رہا ہے طیبہ کو ان کی شکل دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو جھولے جھولتے ہیں, ایسا ہے؟ جی بالکل. میرے فادر پارک میں کام کرتے ہیں, اور پارکس وغیرہ میں کینٹینز ہیں ان کی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھی یہ بات, میں تو ویسے پوچھ لیا تھا میں نے. تو شروع سے ہی وہ ہمیں لے جایا کرتے تھے اور پھر بس چھوڑ دیتے تھے پارک میں. اب چونکہ وہاں کے کو ورکر ہیں تو وہ سب جھولے وغیرہ فری میں, بس جس جھولے میں دل چاہا وہ بس لے جا کر ہمیں چھوڑ دیتے تھے, اور واپس میں ہمیں بچوں کو کلیکٹ کر لیتے تھے کہ چلیں اب گھر چلیں, اور ہم سارا وقت جھولوں میں گزارتے تھے. ٹھیک ہے. اور شمسہ یہ بتائیں کہ اب گیسٹ آ گئے گھر میں اور کھانا ہو گیا خراب, کیا کریں گی؟ پھر بازار سے ہوٹلنگ کوشش نہیں کریں کہ اس کو تھوڑا سا صحیح کر دیں, اب اتنے سارے گیسٹ ہیں, کیا کریں؟ اصل میں بچے چھوٹے ہیں, کوئی لانے والا بھی نہیں ہے, ایک آپشن ہے نا. تو پھر اتفاق سے اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے میں سیپریٹ ہوں تو کوئی اور ہے بھی نہیں سر پہ ہیلپ کروانے والا کہ بھائی آپ جا کے یہ فٹافٹ یہ چینجز کر لیتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ
कुछ चीजें मैं फ्रीज करके रखती हूँ, जैसे कबाब वगैरह हो यही गए, तो निकालने वाली थी मैं, जो फ्रीजर में रखा वो जैसे निकाले ना भाई। फ्रीज कर हमें दिया, हमें भी कुछ सैंडविचेस पता कुछ चले। बना के रख दिए, वो तो ये कि जल्दी जल्दी कोई रेडी टू कुक चीजें होती हैं घर में, तो वो मैं बना के मेहमान सही। वैसे मैं डील कर समझती लेती हूँ आराम से। ये सुघड़ खवातीन की बात होती है, वरना मैं कोई और होता है या मैं होती इस जगह पे, मैं कहती मैं कॉल करके ऑर्डर दे देती, कोई घर पे नहीं। अब तो हर जगह यही चल रहा है और ये इतनी ज्यादा सर्विसेज हो गई हैं कि बहुत इजी हो गया है हर बात के लिए ना। तो ये तो काफी खवातीन भी घरों में ऑनलाइन कुकिंग करके वो कर रही, तो अच्छी बात है। इससे ये बहुत बिजनेस भी है, Business आप भी और घर काम बैठे भी कर अच्छा सकते जी। हैं, बहुत अच्छी बात है खवातीन के लिए, और खासतौर पर खवातीन जो घर में रहकर काम करना चाहती हैं दोनों उनके लिए तरफ से बहुत। आसानी है, जिनको चाहिए है, जिनको खाना चाहिए उनको खाना मिल रहा है, और जिनकी आमदन है उनकी आमदनी भी हो रही कुछ है, अर्निंग भी हो माशाल्लाह से। जाती है घर बिल्कुल बैठे, बिल्कुल और जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की जवेरिया ने, और जवेरिया ने इतनी कम उम्र में इतनी संजीदा बात की है कि मुझे लग रहा है कि जवेरिया बचपन से बहुत संजीदा है, या अभी जाकर हो गई थोड़ी बड़े होने नहीं, के बाद? मैं बहुत ज्यादा शरारती नहीं कितने थी। बहन भाई हैं जवेरिया? मैं इकलौती, इकलौती। एक और नेक। ये तो अम्मी पापा ही बता सकते नहीं, हैं। वो पता चलता है, वो लाड प्यार जो चल रहा होता है ना, हाँ, हम देख रहे होते हैं। नहीं, लाड प्यार तो शायद मैं समझती हूँ कि माँ बाप को हर औलाद से ही होता होगा, लेकिन अब ये है कि उनको कोई और टाइम ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, Option मुझसे नहीं ही है ना। करना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सलामत रखे, सबसे ज्यादा यही दुआ होती है। और शरारत तो मैंने कभी नहीं की, जैसे आपने झूले वाली बात की, तो मैं बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज्यादा, नहीं बैठती झूलों कभी पे? भी नहीं। मैं बहुत हल्के से चलिए, वाले झूले पे भी नहीं बैठ किसी दिन सकती। हम अम्मी से भी पूछेंगे कि जवेरिया बिल्कुल सही कह रही है, कोई आंटी हमेशा साथ आती है। एक वक्फे पे जाना है जनाब, हम हाजिर होते हैं, इसी तरह से हमारी गुफ्तगू में आप साथ रहिएगा, इस उम्मीद के साथ वक्फे पे जा रहे हैं कि आप हमारे हम और आप एक साथ, और आपके घर में भी यकीनन बहुत प्यारे मेहमान आए होंगे और आप उनकी खातिर मदरात इसी तरह से कर रहे होंगे जिस तरह से हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मेहमान शख्सियात तशरीफ फरमाए, और बहुत खूबसूरत और बड़ी मजेदार सी गुफ्तगू जारी थी। और जहाँ मजेदार की बात होती है तो मजेदार हलीम की बात होती है। हमारी इस ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए मजेदार हलीम वालों ने ताउन किया है, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार। उसके साथ साथ मुगलिया निम्को के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर हमारी ट्रांसमिशन कैसे चल सकती थी। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का भी, और उसके साथ साथ इनके ये जो निम्को हमने खाई ये भी बहुत मजेदार थी, तो और गुफ्तगू भी मजेदार थी। ताबिंदा आपा, इसी गुफ्तगू को आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, और ये बताइएगा कि जैसे आपके हस्बैंड जब हयात थे माशाल्लाह, तो उनके साथ जो ईद पे आप पहले दिन कहाँ जाती थी? मेरे हस्बैंड जब माशाल्लाह 19 साल का हमारा साथ रहा, और मेरे हस्बैंड जो हैं यानी बहुत ज्यादा ख्याल करने वाले। उन्हें पता था मैं बगैर मैचिंग के कपड़े नहीं पहनती, उनको बहुत फिक्र मैंने अच्छा। कपड़े सिलवा लिए नहीं सिलवाए, मैचिंग ली नहीं ली, और वो हर चीज में मेरे साथ होते थे। हम जाते कहीं नहीं थे, हम सेकंड डे अपनी अम्मी घर जाते थे। अच्छा, वी ऑलवेज ट्राई टू लीव एट होम इन स्टेट होम, तो वो हम ज्यादा एंजॉय करते थे, और सेकंड डे हम निकलते थे अच्छा, अपने अम्मी घर जाने के लिए या कहीं भी। मैं खुद बाहर कहीं निकलने की बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ। वैसे मैं बहुत बाहर चूंकि हम रोजाना ही मैं अपने ऑफिस के काम से निकल रही हूँ, तो मुझे कोई छुट्टी के दिन मिल जाए, मुझे और मेरे हस्बैंड को जो हम जो एक बहुत हमें सुकून की चीज थी कि हम बहुत देर तक सोएं। अच्छा, क्योंकि जाहिर है तो वो भी मुझे कभी परेशान नहीं करते थे। छुट्टी के दिन हो रहा है या ईद वगैरह, तुम सो जाओ अभी मुझे कुछ नहीं खाना, तो उनको बड़ा ये होता था, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। तो बहुत उनका ये था कि मेरा बहुत ख्याल करना, मेरी चीजों का, मेरे शौक का, मगर जैसे पैम्पर्ड वाइफ होती है ना, बच्चों का सुना है जिस तरह से, और वो मेरा ही नहीं सबका बहुत ख्याल रखते थे। सही, मेरा भी वैसे ऐसी दिन गुजरता है। हाँ। और इतना मेरे हस्बैंड वैसे काफी कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह। और हम जो कुछ भी होते जैसे हम जैसे खवातीन जो वर्किंग है, अगर उनके फैमिली के लोग पहले अपने माँ बाप के घर में, और वो तो माँ बाप तो फिर भी काफी हमें लेवरेज देते हैं, सही, लेकिन हस्बैंड जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर वो आपका कंपैटिबिलिटी आपकी जो है ना, ये सही। बहुत जरूरी है। मारूख, ईदी कितनी जमा हो गई आपके पास? ईदी अभी मैंने काउंट नहीं की। अरे मगर ये ज्यादा है। वाहिद बच्ची है, वही तो कह रही नहीं, ये वाहिद बच्ची है जो काउंट नहीं करती, वरना ज्यादातर बच्चे काउंट करके रख रहे होते हैं कितने हो गए, कितने बढ़ गए, कितने हो नहीं, गए। मुझे इतना
मनी में मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो भी ईदी मिलती है वो मम्मा को दे देती नहीं हूँ। नहीं, इतने बच्चे वैसे बड़े समझदार होते हैं, वो खाम अगर बाद में वैसे पूछेंगे कि वाकई महानूर जैसे बता रही है ऐसे ही है या वैसे ऐसे हाँ, बता रही भले है? हाँ ऐसे ही है, ऐसी लगी क्योंकि वैसे, मुझे बहुत प्यारी सी वैसे माशाल्लाह। भी मुझे बहुत, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मम्मा पूरी कर देती हैं, तो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती, मैं मम्मा को दे देती हूँ। शम्सा, जब हमने ईद उल अज़हा का प्रोग्राम किया था तो आपने एक बिरयानी की रेसिपी बताई थी, वो जो हमारे नाजरीन है उनको बहुत पसंद आई थी, और जब उन्होंने पता चला कि मैं दोबारा ये शो कर रही हूँ तो सबने कहा कि वो शम्सा से वो बिरयानी की रेसिपी जरूर पूछेगा, जल्दी से 2 मिनट में बता दे वो। चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ, पैकेट वाली बता देती हूँ ताकि वो जल्दी ये खत्म क्या हो जाए। पैकेट का क्या? चलिए, जो भी आपने गोश्त वगैरह लिया है उसको पहले वॉश कर लीजिए अच्छी तरह, तो उस पे दही और बिरयानी मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद आप एक देगची में ऑयल गरम कीजिए, फिर उसमें प्याज ब्राउन कर लीजिए और प्याज को निकाल लीजिए, और वो जो आपने फिर गोश्त रखा हुआ है 10 मिनट्स के लिए मसाला लगाओ, फिर वो उसमें डाल के कोरमा तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद राइस बॉईल कीजिए, जैसे तरीका है बॉईल करने का। हाँ, फिर और हरे मसाले आप कटिंग करके रखें, जैसे टमाटर है, लेमन है, धनिया पुदीना, वो जो भी आप मसाला तय लगाने के लिए तैयार करते हैं वो तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आपने राइस को बॉईल कर लिया है, उसको छानने के बाद आप तय लगाएंगे, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप अलग देगची में फिर चावल की लेयर लगाने से पहले थोड़ा सा नीचे घी लगा लीजिए, ताकि वो राइस लगे नहीं, राइस और उनको जले तय ना, लगा के हाँ, दम दे दे। सही। दम लगाने से पहले फिर राइस की एक तय आएगी, फिर उसके बाद कोरमे की जो आपने सालन तैयार किया हुआ है वो, फिर उसके ऊपर हरा मसाला आप डाल दीजिए, और अगर नमक आपसे कम हो जाता है तो उस वक्त नमक थोड़ा सा और आप डाल अच्छा, सकते ये हैं। रेसिपी ऐसी बात नहीं कि वाकई शम्सा की जो बनाई हुई बिरयानी की रेसिपी थी इतनी हिट हुई थी, लास्ट टाइम जब हमने शो किया था सबने कहा कि बहुत बनाई गई भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लोगों ने देखा, पसंद किया, बाकायदा मुझे मैसेज किया कि बहुत अच्छी बनी थी, आप कुक भी बहुत अच्छी हैं भाई, शेफ भी बन सकती हैं आप। हाँ, नाथमा बिल्कुल। तो आप हैं ही माशाल्लाह। जी जी जी, नहीं मैं बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, हूँ, वो लगा था मैं क्योंकि बिल्कुल सबने मैं मुझे ये सबको दावत कहा दूंगी जब कि आइए और मेरे घर खाइए। हाँ, तो मुझे ईद की सबने दावत। ये कहा कि माशाल्लाह वो जो बताई थी रेसिपी वो बहुत अच्छी थी और दोबारा बताई, इसलिए मैंने बाकायदा सबकी फरमाइश पर गोश्त भी धोए वो और फिर चावल मैरिनेट भी करे, बॉईल तय करें। लगाए, पूरी खाना खवातीन की बनाना तरह। मैंने मेरी सास से सीखा, और ये उसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अल्लाह जबरदस्त। ताला उन्हें अपनी रहमत में रखे और सही। उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, आमीन। और बहुत सारी दुआएं मैं चाहूंगी कि आप सब उनके लिए कीजिएगा। इंशाल्लाह पहली भाई, ईद है, हम उनके सबके बगैर लिए हम करेंगे सबकी दुआएं, जो लोग हमारी ज़ाहिर है इन खुशियों में इस ईद पर खास तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। और इस तरह से ज़ाहिर है परवरदिगार, हम जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं और जो ईद पर हमारे साथ नहीं होते तो वो हमारे अपने प्यारे हमें याद आते हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये कि यही दुनिया का दस्तूर है कि आते हैं लोग, जिंदगी से जाते भी हैं, फिर नए लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपनों को इंसान भूलता नहीं। तैयबा, आपसे बात करूंगी कि आप माशाल्लाह से अब यहाँ पर ज़ाहिर है QTV का हिस्सा हैं, एक नया और अच्छा इजाफा है माशाल्लाह, तो आपका जो दिन गुजरता है ईद का, तीनों दिन आप घर पे गुजारती हैं या कहाँ जाती हैं कहीं? घर पर भी गुजारते हैं कोई दिन, और कभी होता है कि फ्रेंड्स के साथ भी आउटिंग पर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि एक प्रॉपर किसी की दावत कर ली जाए, या फिर कोई दावत पर बुलाता है तो उनके घर पर चले आपके जाए। घर क्या बनता है बहुत सबसे ऐसी डिश जो बहुत मशहूर हो? बहुत ज्यादा छोटी बहन के हाथ की बिरयानी और भाभी के हाथ का शीर बिरयानी कोरमा, सबको क्यों पसंद होती है इतनी? और आसानी से बन जाती है क्या? कोरमा बहुत ज्यादा बनता है घर में। ये असल में चावल हर तरह के लोगों को पसंद बहुत ज्यादा है ना, चावल किसी भी चीज के साथ लेकर कोई भी खा लेता है। ये सही बात दाल है। चावल, दाल चावल मतलब कोई भी आया है तो वो बिरयानी कोरमा प्रेफर नहीं करते, दाल चावल प्रेफर करते हैं कि दाल चावल खाना है। तुम्हारे हाथ के मम्मा के? पहले मेरी दादी बनाती थी तो अच्छा। उनके ज्यादा पसंद किए जाते थे, वैसे ही मेरी मम्मा बनाती है और वैसे ही मैं बनाती हूँ, तो मुझे लगता है शायद खानदानी सबका रेसिपी है भाई, ये भी पूछनी पड़ेगी इसका मतलब, अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह ताला जरूर पूछेंगे। सायका, ये बताइएगा कि अभी जो जैसे ट्रेंड चल रहा है माशाल्लाह, मैंने अभी कुछ देर पहले आपस से भी बात की, तो आप क्या करती हैं कि वाकई हर एक को मैसेज पे ईद की मुबारकबाद देती हैं, या एक इज्तिमाई मैसेज कर देती हैं वही सबको फॉरवर्ड करती हैं, या मेरी तरह मैसेज ही नहीं करती? वैसे ही होता है कि मैं मतलब कलेक्टिवली एक ग्रुप को किया, फिर एक ग्रुप को किया, टाइम बाय टाइम यूजुअली आता है, हाँ ये भी रहेगा, ठीक है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो वैसे भी मतलब इन कॉन्टेक्ट काफी सारे लोग होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं साथ में, कि कुछ इन लॉज में से हो गए,
कुछ अपनी फैमिली मेंबर्स में से हो गए, फिर भतीजे भतीजे हो गए, तो मतलब हर एज ग्रुप के लोग भी हैं, फिर इसके अलावा जो है वो जो कोलीग्स हो गए, तो काफी सारे लोग हैं, तो डिफरेंट से जब वो इंटरेक्शन होता है, हाँ ये ग्रुप रह गया ठीक है, तो मतलब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता रहता है। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी कार्ड्स की ना, तो मेरे पापा से मुझे ये आया है कि नहीं, मैसेज वगैरह इतना नहीं, अगर हम किसी को गिफ्ट भी दे दें जैसे शादी का या बर्थडे का, तो कार्ड लाजमी है, वो हम ढूंढेंगे चाहे कितनी भी देर में मिलेगा, लेकिन कार्ड लाजमी होना चाहिए। तो घर में बनाए कार्ड, क्योंकि घर जैसे में अभी भी बना बच्चे लेते हैं। मदर्स डे पे बना रहे होते हैं, बिल्कुल फादर्स बिल्कुल, डे पे ये भी बना है लेते हैं, लेकिन जैसे बाहर से खरीद के हाँ। काफी सारे रखे भी होते हैं, जिसके पास जो इवेंट में जाना होगा वो निकाल के फिर दे भी देते हैं, इस तरह भी होता है, लेकिन कार्ड्स बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तैयबा घर में काम करती हैं? जी बिल्कुल, घर में या काम मेरी करते तरह हैं काम सारे। चोर है? नहीं नहीं, आप माशाल्लाह मैरिड हैं, आप कामचोर कैसे हो सकती हैं? मैं तो अभी जब शादी के बाद से काम करना शुरू किया, उससे पहले की अगर मेरी स्टोरी मेरे फैमिली वाले देख रहे होंगे, तो मैं तो ये करती थी, हम माशाल्लाह 7 बहनें ना, तो मैं जब घर पे स्कूल से आती थी ना, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं शाम को बर्तन धोने मुझे, तो मैं अपनी छोटी बहनों को कहती थी 10 रुपए ले लो और बर्तन धो दो मेरे हिस्से के। तो वो मेरी बहनें आज तक मुझे ये कहती है, ये तो शुरू से रिश्वत दे के काम कराती है। लेकिन मैं ये मेरे कहती थी। पेरेंट्स ईद के हवाले से हम सबसे तो आपने राय ली कि सब किस जी। तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि बाय योरसेल्फ आप किस तरह से सेलिब्रेट करते मैं हैं? कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, बस मेरी भी ईद ऐसे ही होती है, जैसे जाहिर है माशाल्लाह सब मेहमान घर पे आते हैं, तो मैं क्योंकि घर में बहनों में छोटी हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर जाती हूँ। हर कोई मुझे कहता है तुम छोटी हो तो मिलने आया करो, तो मैं भी फटाफट जल्दी से, वैसे ही काम चोर हूँ, जल्दी से चली जाती हूँ। खुश है कि घर में तैयार कोई हो के। टेंशन नहीं हाँ, है। लेकिन अच्छा, होती ईद की है। एक्साइटमेंट वो वाली होती है जो पहले बचपन में हुआ करती थी? ये इंटरव्यू शुरू हो Still- गया उल्टा। स्टिल नहीं, क्योंकि मतलब ईद के हवाले से जरा ईद से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो जरा ज्यादा मजा आता है। हम लोग पता है अपने वो होता हम लोगों के साथ, आप सबके साथ भी यही तो होगा, हम पूरे रमजान इतना बिजी होते हैं, और फिर वो कपड़े, और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि अब तो वो ईद का जो एक जोड़ा बनता था ना उस वक्त, जो मेरे ख्याल से जो हम बचपन में देखते हुए आ रहे होते थे, ईद के हवाले से जो एक अगर सूट है उसके लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती थी, और एक सूट के लिए कितना खुश लेकिन होते उसकी थे। खुशी बहुत अब ज्यादा तो वो होती थी। डेली रूटीन में, मतलब मेरे ख्याल से वो इसराफ भी इतना ज्यादा हो गया है, शायद हर चीज के बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, तो वो चीज मेरे ख्याल से वो जो अलमारियाँ खुशी भरी है ना, पड़ी है ना, वो इसलिए हमें खुशी लगता कम है। हो गई है। हाँ शायद हमारे पास ज्यादा होंगे इस तरह की चीजें इसलिए, लेकिन अगर शायद जिनके पास कम है उनके लिए ये खुशी बहुत ज्यादा होती होगी बेशक, अगर उन्हें हाँ, मिल जाए। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगी इस हवाले से, हाँ, ये क्योंकि बात ज़ाहिर है बिल्कुल हम ठीक है मीडिया कि से हैं, ताल्लुक रखते जो हैं लोग। अगर हम याद करें तो जो हमें पूरे साल में, आपको पता है कि 3-4 जोड़े बनते थे, स्कूल के बनते थे हाँ। यूनिफॉर्म, ये ईद पे, बकरीद पे, हाँ, अलविदाई जुम्मे पे बनता शबे था। बारात और हाँ। जुम्मतुल वदा, उस पे जरूर बनते थे, तो वो बहुत खुशी होती थी। अब आपके पास बहुत है, हाँ जैसे मैं हूँ, मुझे तोहफे भी बहुत मिल रहे होते हैं, या मैं भी बहुत दे रही होती हूँ, सही। या हम बना भी रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि वो जो एक आपका फील था ना कि आपका कुछ आपको मिल रहा है नया, ईद पे वो नया अब जोड़ा पहनने की जो excitement है ना, एक्साइटमेंट थी, वो है ना? बेशुमार हाँ। कपड़े बने हुए हैं, और फिर हम सोचते भी नहीं है, अब बनाते जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि हमें इसका हिसाब भी देना है। ठीक है, अभी जैसे हम सही। कह रही थी, ऐसी में हमारे पास भी कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सोच लें कि कुछ हम इसमें शेयर कर लें, दे दें, तो ये चीजें हमारे पास से खत्म उनके होती लिए जा बहुत रही ज्यादा सही। खुशी है अगर सो जिसके पास नहीं है उसके लिए वो बिल्कुल एक एवरेज जोड़ा भी बहुत है, लेकिन सही। हम लोग बदकिस्मत हो गए हैं। अब मैं यही कहूंगी कि हम उस खुशी से अब महरूम हो गए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा आ गया। मेरा तो यही है ना, कि थोड़ा होता है वो आपको जिंदगी की खुशियों और लज्जतों से बहुत महसूस कराता है, बिल्कुल सही जब बात बहुत है। हो जाता है तो हम नहीं take ऐसा it for नहीं है, अल्लाह granted। का शुक्र। मेरी अगर अम्मी की बात करूं तो मेरी अम्मी मेरे पुराने जोड़े भी माशाल्लाह इस तरह कर देती है कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये नए हैं। तो इस तरह का भी सिखाया है कि मैं अगर किसी को ये बात बताऊं तो ये कहते हैं कि तुम्हारी भी बड़ी बात है कि तुम पहन लेती हो। तो बचपन से कभी ये नहीं किया कि एक जोड़ा इस जगह पहन लिया तो नहीं पहनना, वो पहन लेते हैं क्योंकि हम माँ बाप को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। सही, ये बात, लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज जवेरिया के थ्रू सारी बच्चियों को जाना चाहिए, और गया भी है टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू, कि जाहिर है अगर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, सायका आप भी इस बात की गवाह होंगी, तैयबा आप भी कहेंगी, इस बात को एग्री करेंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस एक इवेंट पे एक सूट पहन लिया, उसके बाद अब पहनना ही नहीं है,
تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں جب یہاں پر ماشاءاللہ جویریہ بیٹھی ہیں اور اتنی اچھی بات کر رہی ہوں, اور ظاہر شمسا ہیں, تابندہ آپا ہیں, یہ ماشاءاللہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, تو ان کی یہ ساری باتیں بھی ہمیں فالو کرنی چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. تو خواتین جہاں ہوتی ہیں وہاں باتیں ہوتی ہیں, اور باتوں سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. وقت ختم ہو گیا جناب, تو پتہ ہی نہیں چلا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ تابندہ آپا, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا آج کے دن, خاص طور پر کیونکہ ظاہر بہت مصروفیت ہوتی ہے. شمسا آپ آئیں, اور بس یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس کو کیسے ہم استعمال. بالکل صحیح. مانور آپ تشریف لائیں, اس کا آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. جویریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سائقہ طیبہ آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. اور جناب بہت شکریہ ادا کریں گے ذائقہ حلیم والوں کی جانب سے جو ہمیں گفٹ ہیمپر ملے, ان کے حوالے سے بھی بہت شکریہ. دیگر اشتراک میں بھی مغلیہ نمکو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ویورز جنہوں نے یہ وقت ہمیں دیا, جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو دیکھا, اور جو ہمیں یہاں پر جو گیسٹ آئے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب یہ گھریلو سی چٹ چیٹ تھی, ایسی بات تھی جیسے آپ کبھی اب کسی سے ملتے ہیں اور اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس طرح سے بات کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات تھی. سمجھ لیں کہ یہ سارے مہمان آپ کے گھر میں موجود تھے اور گھر کے ڈرائنگ روم میں یہ گفتگو ہو رہی تھی. لیکن گفتگو اب ہم سم اپ کرتے ہیں کیونکہ وقت بالکل قلیل رہ گیا. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. ہماری جانب سے ایک مرتبہ پھر عید مبارک. عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان